Hello students, welcome in new session of SS. I am Sangeeta Sinha going to teach you SS chapter number 1. The name of the chapter is Where, When and How. Okay. But before starting this chapter, I would like to discuss about the previous class. Okay. As we study the history of the ancient period in 6th standard, isn't it? We discuss about the history of ancient India and ancient civilization of the subcontinent from prehistoric period to the 7th century CE. Okay? Now in this class we shall study the history of the medieval period. Here we will study about the medieval period. We already discussed in the online class about how the history is divided into ancient, medieval and modern. Ancient you have to read in 6th standard, medieval you have to read in 7th standard and modern you have to read in 8th standard. Okay. But here let's see the overview of this chapter. First is various terms used to describe the Indian subcontinent. What the various terms are used for Indian subcontinent, we have to read in this chapter. Second point is analyzing change over 1,000 years through various sources of history. We will here discuss about the change over 1,000 years and what are the sources from where we get this knowledge, that we will discuss. And third one is broad historical trends in the medieval period. What political changes occurred during this period, that we will discuss. Okay, sorry. Now just see here a history maker, Al-Biruni. Here is written about the Al-Biruni, who was a great traveler, astronomer, mathematician, historian, geographer and writer also. He came to India. He was a foreign traveler and he wrote many things about India in his books. He wrote mostly 146 books and he wrote about the India in his famous book तारिक-अल-हिंद. उसमें इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है. ठीक है. Now medieval Indian history, look at a glance about the medieval Indian history. Here is divided into 3 parts. Different names means इस चैप्टर में जो चीज़ आ रहे हैं उसी को 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है. सबसे पहले डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया. सेकेंड, व्हाट आर द सोर्सेज अबाउट दिस नोइंग अबाउट दिस medieval period. So that sources archaeology and literally, and what were the main trends of this medieval period. तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए. तो सबसे पहले राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स ऑफ राजपूत, फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ, establishment of the Delhi Sultanate and Mughal Empire, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स आए. उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए. बहुत सारे चेंजेस इस दौरान आए. दैट ट्रेंड्स वी विल रीड इन दिस क्लास. 7th स्टैंडर्ड के क्लास में हम सारी ये चीज़ें 10th तक के चैप्टर में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी. मीन 1750 तक का जो पोजीशन था दैट वी विल कवर इन 7th स्टैंडर्ड. ओके. Now let's see the timeline. Timeline means here is ancient period in Indian history, that is from before to 700 CE. Then after 701 to 1200 CE, this is the period of early medieval. And then after 1201 to 1750, that is the period of late medieval period in Indian history. Okay. Now look at the warm up exercise. Here
Indian history is divided into three part: ancient, medieval, or modern. You have to depict the pictures कि they are belong to which period. So a punchmark coin, it is from ancient period. Then after the red fort is the medieval. During Mughal Badshah Shahjahan made this. हाँ, तो ये जो रेड फोर्ट है वो मिडीवियल पीरियड का है. And it is ancient. And last one is Mahatma Gandhi. He was related to modern India, है ना, modern India. Now let's see. Here come to the topic. What brings history alive for us? What brings history alive for us? On what basis is history divided into different periods? These and other similar questions shall be answered in this chapter, which introduces us to medieval history. ठीक है. Now let's see periodization in history. History को कैसे periodization किया गया? History, the study of events of parts, is commonly divided into the ancient, medieval, and modern periods on the basis of changes in social, political, economic organization and shifts in the ideas and belief. Each period is distinguished by specific characteristics and developments. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हिस्ट्री जो था वो है मीन्स पास्ट, अपने स्टडी ऑफ आवर पास्ट, वो इवेंट्स जो पास्ट में हो सके उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री करते हैं. अब यहाँ पर इस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. वो कौन सा पार्ट है? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, इस आधार पर इनको 3 भाग में बांटा गया कि जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल चेंजेस है जिसके आधार पर हुआ है. तो यहाँ पर ईच पीरियड इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट. यहाँ जो बोला गया कि मतलब हर एक पीरियड में, जैसे एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में, हर एक पीरियड में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसके आधार पर डेवलपमेंट्स होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब शुरुआत में अर्ली मेडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट था वो थोड़ा कम था, लेकिन जैसे लेटर मेडिवल पीरियड में वो डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया. उसी तरह एंशिएंट में भी अर्ली एंशिएंट पीरियड में अर्बनाइजेशन उतना नहीं हुआ था, लेकिन द लेटर पीरियड में, लेटर मेडिवल पीरियड में ये ज़्यादा ही अर्बनाइज्ड हो गया, मतलब डेवलप हुआ. ठीक है. नाउ just see the actual duration of the medieval period varies from region to region. Region to region means अर्थ में कंट्री हैं, वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं उनमें जो हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड को जो डिवाइड किया गया है जिस डेट से, वो अलग अलग आते हैं. ठीक है. यूरोप में ये जो मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ 600 CE से स्टार्ट हुआ एंड इट लास्टेड नियर अबाउट 1400 CE. इंडिया में जो मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ रफली 700 to 1750 CE. We can say 8th century to 18th century ये मेडिवल पीरियड रहा. ठीक है. नाउ द मेडिवल पीरियड, अब यहाँ देखो मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया अंडर स्टडी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू early medieval period and the late medieval period.
Okay. Now next class we will discuss about the various terms for the Indian subcontinent. Okay. Bye. Now various terms for the Indian subcontinent. Okay. Here we will discuss about the various names by which India has been known over the period. First, in the ancient period, India was referred to by names such as Bharatvarsha and Jambudvipa. Bharatvarsha is mentioned in both the Vishnu Puran and the Rig Veda. South Asia was also called Jambudvipa or the land of the rose apple tree in Puranic and Buddhist text. अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एंशियंट पीरियड में इंडिया जो था वो किस नाम से फेमस था, भारतवर्षा, और साउथ एशिया जो था वो जम्बूद्वीपा. और ये जो हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, विष्णु पुराण से. ठीक है. उसके बाद पतंजलि यूज़ द टर्म, मीन्स वैदिक पीरियड में पतंजलि यूज़ द टर्म आर्यवर्त. उन्होंने आर्यवर्त से इनको भारतवर्ष को पहचान दिलाई, आर्यवर्त बताया. मीन्स और लैंड ऑफ द आर्यस, आर्यों का लैंड. लिटरली मीन ऑफ दिस वर्ड आर्यवर्त मीन्स या आर्यस मीन्स द गुड एंड द नोबल मैन. ठीक है. आर्य, द लैंड ऑफ आर्य, एंड आर्य हु वर, दे वर द गुड एंड द नोबल मैन. And they denote the northern part of India lying between the Himalayas and Vindhyas. And this Aryavarta is the part between Himalayas and the Vindhyas. Okay. Now, third one, the Jand Avesta, sacred book of the Parsis, mentioned Shabd Sindhu or the land of 7 rivers as the name for India. एंड जैन अवस्था क्या है, एक पार्शियन होली बुक है, होली टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट में जो सेक्रेट बुक है, जो हमारे जैसे रामायण होती है, हमारे महाभारत है, जो हमारा सेक्रेट पवित्र ग्रंथ है, गीता है, उसी तरह से पार्शियों की जो पवित्र जो किताब है वो है जैन अवस्था. और इस जैन अवस्था में भारत का जो नाम दिया गया वो नाम क्या था, सप्त सिंधु, मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. यहाँ पर लैंड ऑफ 7 रिवर्स सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी. ठीक है. ना नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं एंशियंट ग्रीक्स. एंशियंट ग्रीक्स रेफर टू द इंडियन एज इंडॉय, द पीपल ऑफ द इंडस. अब यहाँ इंडस रिवर्स, जो एंशियंट ग्रीक थे उन्होंने जो इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए इंडॉय वर्ड्स को का यूज़ किया, जिसका मतलब है पीपल ऑफ द इंडस. आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द medieval period, the name that gained popularity was हिंदुस्तान. अब medieval period आता है. medieval period में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड हुआ वो भारत के लिए, इंडिया के लिए, वो कौन था, हिंदुस्तान. with the term, along with the term Hind. These names are still used in present day India. ये जो नाम है अभी तक यूज़ होता है भारत के लिए. and therefore it is important to know how they came about. मीन्स हिंदुस्तान कैसे बन गया. इंडोय बुलाया, इंडस बुलाया, आर्यवर्त कहा, भारतवर्ष का, उनके पीछे कारण था, ये था भारतवर्ष इसलिए बोला, या जम्बूद्वीपा बोला तो, या आर्यवर्त बोला लैंड ऑफ द गुड पीपल नॉवल तो आर्यवर्त बोला, इस तरह से, या सप्त सिंधु बोला तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इनके पीछे कारण था इसलिए ऐसा नाम दिया. लेकिन अब यहाँ पर मेडिवल पीरियड में ये बात आती है कि ये हिंदुस्तान क्यों हुआ, हिंदुस्तान टर्म कैसे आ गया. तो कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स कॉल देयर इंडियन एम्पायर हिंदुस्तान. उन्होंने अपने मेडिवल पीरियड में अपने एम्पायर को हिंदुस्तान कहना शुरू किया. इसके पीछे था कारण, द टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर द रीजन ऑफ इंडिया लाइंग बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड हिमालयन एंड विंध्य माउंटेन रेंजेस.
अभी यहाँ पर आप जो हिंदुस्तान वर्ड टर्म यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन कितना उनका जो रीजन था वो हिमालय से लेकर विंध्य और सिंधु से लेकर या इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक का जो रीजन था वो कहलाता था हिंदुस्तान। ठीक है। द रिवर इंडस और सिंधु, इंडस का संस्कृत नेम क्या, सिंधु, फॉर्म द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। बॉर्डर था वो भारत का, वेस्टर्न बॉर्डर। द एस ऑफ सिंधु बिकेम एच, यहाँ सिंधु जो का एस है वो एच हो गया। इन द लैंग्वेजेस ऑफ द विजिटर्स और इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के जो विजिटर्स थे या जो इन्वेडर्स थे उनके लिए ये प्रोनाउंस करना मुश्किल था, एस उनके लिए एच बन गया, तो जो सिंधु था वो हिंदू बन गया। ठीक है। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर हिंदू या सिंधु केम टू बी कॉल्ड हिंदूज इन मिडीवियल इंडिया। तो अभी यहाँ पर क्या क्या कहा गया, इंडस रिवर के जो वेस्टर्न साइड्स में जो पीपल रहते थे उनको क्या बुलाया जाने लगा, हिंदूज इन मिडीवियल पीरियड। ओके। दस द लैंड ऑफ रिवर हिंदू बिकेम हिंदुस्तान। तो जो लैंड ऑफ रिवर था वो हिंदू बन के क्या बन गया, हिंदुस्तान। ठीक है। इंडियाज़ प्रेजेंट नेम इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। और ये भी कहा जाता है जो इंडिया का जो अभी का नाम है, जो इंडिया बोलते हैं ना, तो वो भी इंडस रिवर से ही डिराइव हुआ है, निकला है। वाइल द नेम हिंदुस्तान continued to be the popular throughout the medieval period, the geographical area which was covered by this name varied widely. For example, ये पूरे medieval period में हिंदुस्तान पॉपुलर रहा। अब इसमें जो इस medieval period में जो geographical area है वो कौन कौन सा covered होता है, just see. In the early medieval period, the name denoted the land lying between the river Indus and its tributaries and the land between rivers Ganga and Yamuna. इसको आप याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि अर्ली मिडीवल पीरियड में जो नेम था हिंदुस्तान टर्म वो किसके लिए यूज़ होता था, द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज and the land between river Ganga and Yamuna, isn't it? ये याद बिल्कुल रखोगे, अर्ली मिडीवल पीरियड में ऐसा होता था। But in the late medieval period, the name come to denote much of what is today modern India, including South India. लेकिन लेट medieval period में हिंदुस्तान टर्म तो रहा, but what include in this term? साउथ इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन दिस टर्म। पहले सिर्फ मिडीवल पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया था उसी को ही हम काउंट करते थे, लेकिन लेट मिडीवल पीरियड में इनको भी साथ में लेने लगे। मॉडर्न इंडिया में हिंदुस्तान टर्म में साउथ इंडिया भी आ गया। ओके।